Children, I hope there is no doubt in this chapter federalism. We had done some key points, key features of federalism. There were 7 key features. हम लोग ने पूरे 7 कर लिए थे. And some students haven't written point 7 as I have said them to. Please make the corrections. And we had done कमिंग टुगेदर फेडरेशंस. उसके हम लोग ने एग्जाम्पल्स भी कर लिए थे. कौन कौन से थे? लाइक यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. और उसका की फीचर क्या था? व्हाट वर कमिंग टुगेदर फेडरेशंस? दे वर कि जो स्टेट्स होती हैं वो एक साथ आती हैं बाय रिटेनिंग देयर आइडेंटिटी, पूलिंग देयर सोवरेनिटी, और अपनी सिक्योरिटी इंक्रीज़ करने के लिए वो सारी स्टेट्स इकट्ठा होती हैं और उस टाइप ऑफ फेडरेशन को बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन. और इस फेडरेशन के एग्जाम्पल्स हैं यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. सो when independent states come together on their own to form a bigger unit, that नहीं करना, a bigger unit by pooling sovereignty, retaining identity and increase their security. This type of coming together federation includes USA, Switzerland and Australia. So the first point was this, okay, till security tak, or you can add in the first point only, this type is called coming together federation. Second point, for example, USA, Switzerland and Australia. जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही लिखना. आप देख रहे हो कि मैं लैंग्वेज चेंज करती हूँ. इफ़ आई राइट एन आंसर, इफ़ आई डिक्टेट एन आंसर, लाइक the independent states come together on their own to form a bigger unit by pooling sovereignty and retaining identity. They increase their security. This type is called coming together federation. Okay. Second point, for example, USA, Switzerland and Australia come in coming together federations. Okay. In this first category of federations, all the constituent states usually have equal power and a strong vice versa the federal government. So basically ये जो भी constituent states होती हैं उनके पास equal power होती है. Okay, and vice versa they the strong federal government. और इसी equal powers होने की वजह से उनकी एक strong federal government बनती है. So this is also important that the constituent states have equal power and strong federal government. Okay, and a strong federal government. Now coming to the second, हम लोग ने देखा था कि 2 टाइप्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं कि जिससे फेडरेशंस फॉर्म होती हैं. पहला रूट ये था कमिंग टुगेदर फेडरेशंस. अब दूसरा होगा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस. The second route is where a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government. सेकेंड चीज़ क्या है? पहले में था कि स्टेट्स इकट्ठी वो बनती हैं, ओके, अपने पूल करती हैं, अपनी सिक्योरिटी इंक्रीज़ करती हैं, ये सब करती हैं. सेकेंड में होता है जो लार्ज कंट्री डिवाइड करती है. ओके, सो लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट. जब एक लार्ज कंट्री डिसाइड करती है कि वो पावर डिवाइड करेगी स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में. इंडिया, स्पेन और बेल्जियम एग्जाम्पल्स हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस के. सो इसका पहला पॉइंट, when a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government, it is called holding
together federation. This was the first point. Second point, for example, India, Spain, Belgium are examples of this kind of holding together federations. Am I clear? Now if I ask the difference between coming together and holding together federations, तो उसका आंसर कैसा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइड पे लिखा जाएगा होल्डिंग टुगेदर एंड एक साइड पे लिखा जाएगा कमिंग टुगेदर फेडरेशंस. ओके, सो ओवर हियर विल बी कमिंग टुगेदर एंड ओवर हियर विल बी होल्डिंग टुगेदर. ओके, होल्डिंग, जस्ट अ सेकेंड, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस. यू विल राइट द फुल. ओके, मैं इसमें लिख नहीं पा रही हूँ ज़्यादा. ओवर हेयर विल बी द फर्स्ट पॉइंट इसका एंड फर्स्ट पॉइंट इसका, फिर सेकंड पॉइंट इसका, सेकंड पॉइंट इसका. ओके, एम आई क्लियर? ऐसा आंसर चाहिए मेरे को. ओके, नाउ आई जस्ट इरेज दिस. और कहीं पे भी आपको डाउट हो तो आप पॉज कर सकते हो वीडियो. ओके, एंड देन फिर से सुनो, फिर एक बार रीड करो. ओके, तब समझ में आएगा अच्छे से. नाउ देर इज़ अ थर्ड पॉइंट ऑल्सो. मैंने भी सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 1 and 2 दिए थे, बट थर्ड पॉइंट भी आएगा. ओवर हियर द थर्ड पॉइंट वॉज कि द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर and a strong federal government. Now we will do the third point of this, that the central government tends to have more powerful, vice versa the states. अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी मोर पावर रहती है तो स्टेट्स के पास भी रहती है. वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशंस हैव अनइक्वल पावर्स. और कई बार डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के पास अनइक्वल पावर्स होती है, मतलब किसी के पास ज़्यादा तो किसी के पास कम. तो सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स, और उसमें सारी स्टेट्स के पास इक्वल पावर्स थी. इसमें ऐसा नहीं है. सो व्हाट इज़ द थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट कमिंग टुगेदर का फेडरेशंस का तो आई एम क्लियर. द थर्ड पॉइंट ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस क्या है? That very often different constituent units of the federations have unequal powers. Some have granted special powers. Some units are granted special powers. तो 3 पॉइंट्स दोनों के हो गए. इफ़ आई आस्क द डिफरेंस, जैसे मैंने आंसर डिक्टेट करा है मेरे को वैसे ही चाहिए. ओके, मैंने 1 और 2 पॉइंट्स लिखे थे, बट इसमें थर्ड पॉइंट भी आएगा. ऑल 3 पॉइंट्स आई नीड. ओके, सो हियर इज़ द first question for your worksheet. What is the difference between coming together and holding together federations? I am repeating it again. What is the difference between, what are the 3 differences between coming together and holding together federations? I hope that I am very clear in my command. Now here is a reading part. You can read this, and if you have any doubt you are free to ask. Okay, now coming to what makes India a federal country. अब क्या चीज़ इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है? We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity. अब इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे स्मॉल कंट्रीज़ लाइक बेल्जियम और श्रीलंका इतनी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं अपनी डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए. अब इंडिया तो इतनी बड़ी कंट्री है और इतनी सारे डाइवर्स कम्युनिटीज़ हैं इसमें. So what about a vast country like India with so many languages, religions and regions? Now
वी हैव सीन दैट बेसिकली लैंग्वेज डिफरेंस था बेल्जियम में. ओके, देयर वर रीजनल डिफरेंसेस ऑल्सो, बट इंडिया के पास तो रीजन्स में भी वेरिएशंस हैं, रिलीजन्स में भी वेरिएशंस है, और लैंग्वेजेस भी वेरिएशंस है. वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस कितनी सारी है. वर्नैक्युलर का मतलब रीजनल लैंग्वेजेस, लाइक वी हैव मराठी, वी हैव तेलुगु, वी हैव गुजराती, वी हैव मैनी लैंग्वेजेस. सो कितना डाइवर्स है इंडिया. अब स्मॉल कंट्रीज़ में इतनी दिक्कत हो रही थी, तो बड़ी कंट्री में भी दिक्कत आएंगी. लेट अस बिगिन विथ कॉन्स्टिट्यूशन. India had emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. अब इंडिया इमर्ज हुआ था इंडिपेंडेंट नेशन पार्टीशन के बाद, और पार्टीशन में काफ़ी खून बहा था दोनों, हर कम्युनिटी का बेसिकली. तो सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री. तो इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थी वो जो कंट्री का पार्ट बन गई. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. और कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को डिक्लेयर करा एक यूनियन ऑफ स्टेट्स. ऑल्दो इट डिड नॉट यूज़ द वर्ड फेडरेशन, द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरेशन. ऑल्दो उस टाइम पे वर्ड फेडरेशन नहीं आया था, बट इंडियन यूनियन को, यूनियन ऑफ स्टेट्स को प्रिंसिपल्स किसके ऊपर बेस्ड थे? फेडरलिज्म के ऊपर ही. नाउ लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन्ड अबव. अभी हमने जो 7 फीचर्स करे थे फेडरलिज्म के, पॉज द वीडियो एंड रीड ऑल दी 7 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. ओके, रीड. नाउ एज आई डोंट हैव एनी फेथ कि आप लोग खुद से पढ़ेंगे, आई विल रीड विद यू गाइज. द फर्स्ट पॉइंट वॉज देर आर 2 or more लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. एक या दो से ज़्यादा लेवल्स होते हैं या टायर्स होते हैं गवर्नमेंट के. सेकेंड पॉइंट, different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. I hope there is no doubt in the second point, but if you have, you can ask. Okay. Third point, the jurisdictions of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution. So the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. तो constitutionally guaranteed है जो भी jurisdictions हैं in specific matters like legislation, taxation and administration, वो constitution ने guarantee करे हुए हैं हर level of government को. The fourth point, the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. कोई भी एक level of government उस constitution के provisions change नहीं कर सकती है, fundamental provisions नहीं change कर सकती है. अगर कोई change लाना है तो both the level of government से का consent चाहिए होगा. कोई भी एक level of government change नहीं कर सकती है. Fifth point, courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of government. अब courts के पास ये power है कि वो interpret करे constitution को और powers of different levels of government or different tiers of government. The biggest court acts as an umpire if the dispute arises between different levels of government in the exercise of the respective powers. So एम्पायर जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो किसके पास है? अगर डिस्प्यूट अराइज हो जाता है कि पावर्स को लेकर बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो कोर्ट्स. ओके, द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट करता है एज एन अम्पायर. सिक्स्थ पॉइंट, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी.
जो सोर्स है रेवेन्यू का कि उनको कहाँ से इनकम आएगी, वो भी ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए क्लियरली स्पेसिफाइड है. Now the seventh and the most important point, the federal system has thus dual objectives. दो objectives है federal system के. पहला है कि वो safeguard और promote करे unity of the country, to safeguard and promote the unity of the country. Second point, at the same time वो accommodate करे regional diversity को. Okay, so the two objectives of federal system are to safeguard and promote the unity of the country and to accommodate regional diversity. Therefore, two aspects are crucial for the institutions and practice of federalism. Governments at different levels should agree to some rules of power sharing. Government levels को एक पावर शेयरिंग के रूल्स को अडहेयर करना पड़ेगा और उनको म्यूचुअल ट्रस्ट भी बनाना पड़ेगा कि दूसरा जन अपना अग्रीमेंट से वो अपना काम करेगा. एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट्स, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर. तो एक आइडियल फेडरल सिस्टम के पास दो एस्पेक्ट्स होते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट और अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर. दीज वर द 7 points. नाउ वी विल डू this the constitution say in the next video. Okay, so I hope you have revised the chapter till here. Okay, so in the next video I will not revise the chapter, I will straightforward continue. Okay, and children, अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो. ओके, मैं देखती हूँ कि लोग काम कॉपी करते जाते हैं एक दूसरे का, but that is not necessary. अगर आपको दिक्कत है तो you can ask.